is what is bills of exchange? Bills of exchange is what? It's a document. It's an unconditional order made by the creditor on the debtor to pay a certain sum of money after a certain period of time. What is the need? Why do we make this document? For two important reasons. Number one, security of payment and negotiability. What do you mean by negotiability? It can be used to settle accounts, used to pay your creditors, used to discount. Okay? Yeah, what do you think? Now, tell me, how many parties are there to a bill of exchange? Three parties. What are the three parties? Drawer, drawee, and pay. Who is the drawer? One who makes the bill, right? Who is he in the transaction? One who will receive the money. One who has to receive the money is the creditor of the transaction, right? Who is the drawee? Debtor of the transaction. One who has to pay the money. And who is the payee? Who ultimately receives the amount of the bill, right? Then, how do you calculate the due date of the bill? 3 days after. Whatever the period, just pay add 3 days of period. If it is days, then add 3 days to the days. And if it is months, add 3 days to that month bracket. Suppose the bill is 20 days, so exact 20 days plus 3 days, 23 days. 55 is 55 plus 3, 58 days. Okay? If it is months, then 2 months plus 3 days, 3 months plus 3 days. That way. Got it? Tell me, what do you mean by bank for collection? What is bank for collection? Bank collects the amount. Bank collects the amount on our behalf. And for that they charge some charges. बराबर है हमारे लिए कुछ charges deduct कर लेते हैं. They are bank charges. They deduct those charges only on collection. Okay, जब हम bills देते हैं तभी कोई collection होता नहीं. Charges. दो कल ही बात हो रहा था. क्या बात है? Fines. कल नहीं लिया. दिया. कल बात हो रहा था, कल टाइम पे आ गया था. आप चालू कर दिया था. So, bank for collection is nothing but the service provided by the bank. Okay? So, it collects the bills and then gives us the money. Then we saw after date and after side bill. What is after date bill? Taking the due date from the date of drawing, and after side is taking the due date from the date of acceptance. And at side और on demand में कोई period नहीं. जब demand करो तो pay करना पड़ता है. उसके बाद हमने सीखा, these are the basic points. We saw the entries in the books of drawer. How does it start? What is the first entry in the books of drawer? Sales entry. What is the entry for sales? Drawee to sales या फिर debtor to sales. बराबर है? Then we have acceptance entry. We are to accept them. Then the bill can travel to various places, starting with retained. The bill is retained. What is the dealing entry? No entry. Retained bill का कोई dealing entry नहीं होता. बराबर है? Then what is the bill is endorsed? What is the endorsement of the endorsee to be? Creditor to be. बराबर है? You are settling your creditor. Then what is the bill is discounted? Discounting charges to be. You are selling the bill to the bank. That bill is bills receivable for us. It's an asset. You are selling and getting the money. What is the entry for giving it to BFC? BFC to BR. Bank for collection to BR. Right? And honor की केस में अगर retained bill honor हुआ है तो what happens? पैसा आया, bill गया. What if it is endorsed and discounted? What if it is sent to BFC? Bank charges to BFC or BR? Yeah, debtor. The moment you give the bill to BFC, they become your debtor. So bank to BFC, which may charges. Then we also saw dishonor entry. Dishonor में एक चीज तो common है. If it is retained, then
It is endorsed then endorsed या creditor. If it is discounted, if it is sent to BFC, and noting charges, चार में से तीन cases में who pays? We pay. So what is the entry? अपना expense है कि उसका है? उसका है. Pay हम कर रहे हैं, उसका expense है. तो entry क्या होगी? तो केस आई थिंक रिटेन के केस में, डिस्काउंटेड के केस में और बीएफसी के केस में. यहाँ पे डेटर टू कैश, यहाँ पे डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक. एंड हु पेज एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट? क्रेडिटर pays. So you add the amount to debtor and creditor. So debtor to creditor या फिर acceptor to endorse. Retirement का entry cash discount allowed to BR की debtor BR है अभी. Renewal के चार steps. First है old bill, 5 और 6. Part payment का क्या है? Cash to BR. BR अभी existence में नहीं. Cash to debtor. Interest receivable है कि payable है? Receivable है. So debtor to interest. Interest receivable to interest का जगह debtor to interest and new bill accepted. That is what BR to debtor. BR to debtor. Bills receivable बढ़ा, debtor वापस करता. पुराना बिल बढ़ गया, नया बिल वापस एक्सेप्ट हुआ. तो BR to debtor, right? इंसॉल्वेंसी के केस में पहले तो बिल गेट्स डिसऑनर्ड, एंट्री नंबर 5 और 6, एंड फाइनल सेटलमेंट कैश डेटर की BR इज द पॉइंट द BR इज ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, रिटायर्ड. तब तक BR ऑनर डिसऑनर रिटायर हो गया, खत्म. ऑनर और रिटायरमेंट के बाद तो जरूरत नहीं पड़ता. डिसऑनर अगर हो गया उसके बाद क्या नाम ले रहा है? डेटर. देन योर एसेट बिकम्स योर डेटर. If the bill is dishonored, till that time it is BR. Once it is dishonored, then it is debtor. Replace हो जाता है. Is it clear? Let's start with the problems. I'll explain it along with the problem. Last the entries along with the problem. Like the first sum. Right now we are doing entries in the books of drawer. Exam में आपको दिया होगा. Question number 1, page 6. Exams में आपको दिया होगा कि कौन से बुक में एंट्री करना है. तो टेंशन वाली बात नहीं है वैसे. They specified very clearly in whose books are we supposed to pass. यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया हुआ है. जर्नल ड्रॉ कर लेना है. सिंपल जर्नल फॉर्मेट इट इज. डेट है तो डेट, नहीं तो सीरियल नंबर. पर्टिकुलर्स LF, debit rupees and credit rupees. First sum, page 6. Drop a journal. और ये बात, वो जो रेड लाइन दिख रहा है ना, वो ना डेट वाला इतना ही रखने का अमाउंट, पर्टिकुलर और बड़ा रखने का. वो देखो उसका तंदी. और लास्ट में ना 2 फिंगर जितना जगह फॉर योर डेबिट एंड क्रेडिट. हाउ इज द पेपर अच्छा? गुड, बैड, आया. देख क्या गलत अमाउंट. फाइनल अकाउंट वगैरह सब आया टैली को. सर इन्वेस्टर्स किसमें आता है? इन्वेस्टमेंट रहेगा. इन्वेस्टर्स था सिंगल एंट्री. अरे हाँ, तुम्हारा पेपर स्टेटमेंट ऑफ पता है सर रॉन्ग ही है. दैट इज इन्वेस्टमेंट ओनली. गलती से प्रिंट हो गया. वो तो 4-5 एरर्स था. हाँ. अरे बाप. 1 जनवरी के बाद 18 जनवरी. इन्वेस्टमेंट था, वो एसेट में डालना था. किधर डाला? हम लोग भी इन्वेस्टर्स ही ऐसे में डालते हैं. हाँ ठीक है, बट वो इन्वेस्टमेंट था. और बाद में डेब्री WDV में उन लोग ने 18 जनवरी दिया था. कैसे फाइन? मेरा तो फर्स्ट है यार. 1 जनवरी. चलिए, जर्नल में क्वेश्चन में तो एग्जाम में आपको मेंशन किया होगा कि किसके बुक में करना है एंट्री.
ठीक है। यहाँ पे पढ़िए अमर सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 टू राम। तो ड्रॉवर कौन होगा और ड्रॉई कौन? ड्रॉवर होगा अमर और ड्रॉई होगा राम। पक्का? हाँ अमर सोल्ड ना, तो अमर हैज टू रिसीव द मनी। तो ऊपर लिख देने का इन द बुक्स ऑफ अमर। हम लोग अभी अमर के बुक में लिख रहे हैं, फिर सारे के सारे सम हम लोग राम के बुक में मतलब ड्रॉइंग के बुक में भी करेंगे। फिलहाल ऑल द सम्स विल बी डूइंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड द सेम सम्स विल बी डूइंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ओके, इट इज एक्चुअली 16 plus 16 32 sums. So first sum in the books of Amar we are doing, ठीक है। So Amar sold goods of 50,000 to Ram. Bhavya, tell me the entry for sales. Amar sold goods of 50,000 to Ram. राम टू सेल्स। Very good. Debtor to sale. यहाँ पे debtor कौन है? राम। तो 6th of Jan 2016 एंट्री क्या हो जाएगी? राम अकाउंट डेबिट टू sales account. Amount is 50,000. Ram account debit to sales account 50,000 being goods sold to Ram. Being goods sold to Ram. First entry sales entry. जैसे जैसे पढ़ते जाना है वैसे वैसे एंट्री करते जाना है, ट्रांजैक्शन वाइज, ठीक है। Then हाँ के पेपर में लेजर में लोगों ने सिर्फ 1 जनवरी ही दिया था, कोई ईयर नहीं दिया था। ठीक है, ऊपर चलता जो है। जर्नल में जो उन लोग ने ईयर दिया था नीचे लिखा होता चलता है। नहीं, एक्चुअली नहीं लिखा तो चलता है। 1 1 1 2 1 7 1/1 3/, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये भी assume करो। assume नहीं करना है, 3 1 4 1 6 1 ऐसे लिख सकते हो। चलिए, Ram accepted the bill for the sale for 3 months, which was discounted with bank at 12% interest per annum. पहले तो एक्सेप्टेंस होगा, बाद में डिस्काउंट होगा, ठीक है। आर्यन, रिसीवेबल टू राम। या बिल्स रिसीवेबल टू राम। वेरी, लिख दो सब लोग। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ा टू व्हाट? राम। हु इज राम? डेटर। कितने का होगा? 50,000 का होगा। और कब एक्सेप्ट होगा? डेट सेम डेट, बराबर है। being BR accepted for 3 months. समझा? पहला दो एंट्री, सेल्स हुआ फिर बिल एक्सेप्ट हुआ, राम टू सेल्स एंड BR टू राम। इज दिस क्लियर? देन ध्यान से इंग्लिश पढ़ के समझने का है। पहले सेल हुआ, सॉरी, फिर उसने बिल एक्सेप्ट किया। द सेम बिल वाज डिस्काउंटेड विद बैंक एट 12% पर एनम। तो 4 स्टोरीज थी बिल की, रिटेन्ड, एंडोर्स, डिस्काउंटेड, बीएफसी। सो विच स्टोरी आर वी डीलिंग? तो कौन सा डीलिंग एंट्री करने का है? डिस्काउंटिंग। समझ आया? ये अगर बीएफसी को गया होता तो बीएफसी का करते, एंडोर्स किया होता तो एंडोर्स का करते। नक्शी, टेल मी द एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग डीलिंग एंट्री। बैंक चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल, या फिर बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल। सो बैंक पैसा आया, डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखो या फिर बैंक चार्जेस लिखो, दोनों फाइन है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? राम और बीआर, बिल्स रिसीवेबल। वी सोल्ड द बिल टू द बैंक। हमें अर्जेंट नीड था पैसों का, तो हम तुरंत बैंक में गए और बिल को बेच दिया। ओके, अभी डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है? वेरी सिंपल इट इज। यू नो पीएनआर वाला फॉर्मूला? सेम वे डिस्काउंट, हाउ विल यू कैलकुलेट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल? प्रिंसिपल इज 50,000. ओके, व्हाट इज द रेट? 12%. ओके, फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Why? Because bank will get the money after, so 3 महीने का इंटरेस्ट काट लेगा। डिस्काउंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ओनली।
आप मुझे 3 महीना जल्दी पैसा दोगे तो मैं आपको 3 महीने का डिस्काउंट दूंगा। वो क्या है, 3 महीने का ब्याज ही है, उतना इंटरेस्ट मेरा बच गया तो मैं आपको डिस्काउंट में दे दूंगा। समझ में आया? तो इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे ही डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कुछ नया चीज नहीं है। PNR, प्रिंसिपल, नंबर ऑफ मंथ्स, रेट, तीनों होना चाहिए। ओके, हाउ मेनी मंथ्स? 3 months. What if it was a 2 months bill? So 2/12. तो 2/12, 1 month bill 1/12। तो जब डिस्काउंट करवाया और ड्यू डेट, मतलब बैंक को कितने महीने बाद पैसा मिलने वाला है? 3 महीने बाद। तो बैंक 3 महीने का काटेगा। बैंक को 2 महीने बाद मिलने वाला तो 2 महीने का काटेगा। 1 month बाद मिलने वाला तो 1 month का। 4 महीने बाद मिलने वाला तो 4 महीने का काटेगा। वही है, इंटरेस्ट डिस्काउंट सेम ही है। तो आई थिंक इट इज 150। तो Plus इस 1500. 1500. sorry 1500, 1500 rupees is the amount of discount. Sir, So अभी अमाउंट लिखोगे कैसे? ऊपर आएगा 48,500 and नीचे 15,000. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बिल जो था वो कितने का था? 50 का था। तो हमने बिल 50 का बेचा, लेकिन बैंक में 50 नहीं देगा, Discount काट के. डिस्काउंट काट के देगा। तो इधर 50 और इधर 48,500। समझा? यस। सर अगर डेज में दिया है ड्यू डेट तो कैसे करेंगे? डेज में दिया है ना, तो एग्जैक्ट जो भी डेज है, समझो 40 डेज है, तो 40/365 वैसा करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम में जनरली डेज नहीं आता, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। प्रॉब्लम्स में इट विल बी मंथ्स होगा, प्रॉब्लम में डेज का कैलकुलेशन नहीं है। अगर आए तो अपॉन 365। यस, इज इट क्लियर? Yes. मंथ्स है तो अपॉन 2 है, डेज है तो अपॉन 365। सर इसमें तो 60 में तो लीप ईयर है तो 366 नहीं 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 नहीं, वो 365 ही सोच सकते। यस, लीप ईयर सब मारोगे। ओके, हमेशा 365 बीइंग BR डिस्काउंटेड विथ बैंक। सो अभी एक चीज तो पक्की हो गई कि कौन सी वाली स्टोरी पे जाना है, डिस्काउंटिंग वाली। तो बाकी 3 को भूल जाने का। समझ में आया सबको? सेल्स हुआ, बिल एक्सेप्ट हुआ, फिर बिल डिस्काउंट हुआ। अभी डिस्काउंट तो करवा दिया, अभी रिजल्ट देखना है। रिजल्ट में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ऑनर हो सकता है या तो डिसऑनर हो सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ऑन द ड्यू डेट राम रिक्वेस्टेड अमर टू रिन्यू द बिल। द मोमेंट यू सी दिस वर्ड रिन्यू द बिल, इसका मतलब डिसऑनर हो गया। और रिन्यू का मतलब हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल? रिन्यू दिख गया ना, मतलब 4 स्टेप करना ही है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल? ओल्ड बिल कैंसिल, मतलब डिसऑनर हो गया। कौन सी डेट को हुआ होगा पता है? इसका ड्यू डेट क्या है? 3 महीने बाद। सो 9th of April 2016, 9th of April 2016, 9th of April 2016। हाँ, तो 6th of Jan, 6th Feb, 6th March, 6th April plus 3 days of is 9th April। और if you got it, ड्यू डेट समझ आया ना? 3 दिन ऐड। अच्छा, पहला स्टेप क्या है? ओल्ड बिल कैंसिल, डिसऑनर। ओके, थिंक डू यू हैव एनी नोटिंग चार्जेस ओवर देयर मेंशन? नो, मतलब ये कोर्ट के थ्रू नहीं गया, नॉर्मल डिसऑनर। ओके, तो दिस इज व्हिच बिल डिसऑनर? रिटेन डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, डीएफसी। तो कौन सा डिसऑनर की एंट्री कर देगा? डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर का एंट्री क्या है? डेटर टू बैंक। याद आया? एक्सेप्ट को डेबिट ही करना, डेटर को डेबिट ही करने का, इधर बैंक का। बीएफसी होता तो डेटर टू बीएफसी, एंडोर्सी होता तो डेटर टू एंडोर्सी। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? राम टू बैंक। राम टू बैंक, हाउ मच? 51,500। लेकिन वो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी हट हमने जब बिल डिस्काउंट करवाया, हमने नहीं बोला, नाम से नहीं बोला था बुकिंग बैंक। लगा नोटिंग चार्जेस नहीं है नोटिंग चार्जेस। ओके, हमने जब डिस्काउंट करवाया था हमें कितने मिले थे? 48,500. तो जब डिसऑनर होगा तो क्या हम वापस बैंक 48,500 काटेगा कि 50? 50 एक्चुअल बिल अमाउंट, बिकॉज बैंक वांटेड 50, बैंक वांटेड 50 either from the debtor or from us, so it is Ram to bank 50,000।
Ram to bank 50,000 being BR dishonored या BR cancelled. Dishonored लिखो या cancelled लिखो. ओके एक ही बात है. ओल्ड बिल कैंसल्ड या फिर BR डिसऑनर्ड, BR कैंसल्ड. और रिन्यूअल में कितने स्टेप्स है टोटल? 4. और चारों की डेट क्या होगी पता है? सेम डेट. तो सेकेंड स्टेप क्या था याद है? पार्ट पे बोलेंगे अरे कुछ तो दे. 50,000 रुपए तुमने एक्सेप्ट किया था 3 महीने के लिए, वो बिल तो बाउंस हो गया, ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए. तो अभी राम से कितने लेने? 50. और बैंक ने काट लिया. समझे बात? बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया, तो हमने अभी राम से 50 लेने. बोला कुछ तो दे. तो क्या दे रहे? देखो पेइंग 20,000 इन कैश. तो राम भैया कितना दे रहे कैश में? 20,000. तो एंट्री क्या होगी? कैश टू BR की कैश टू पक्का. क्यों? अभी बिल तो डिसऑनर हो चुका है. समझा? बिल तो डिसऑनर हो चुका है. तो कैश टू राम कितना? 20,000. कैश टू राम 20,000 being part payment received. Being part payment received. Is this clear? Being part payment received. Same journal. Continue. ओके तो 50 में से 20 दिया उसने. 20 दिया, बाकी 30 का क्या बोल रहा है? On the due date, Ram requested Amar to renew the bill by paying 20,000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 months along with interest at 12% per annum. So इसका मतलब समझा? तो बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो किसके साथ दे रहा है? नेक्स्ट बिल के साथ, न्यू बिल के साथ. तो व्हाट इज योर थर्ड स्टेप? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिसीवेबल है कि पेएबल? कैन यू टेल मी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल? राम टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह राम एक ही बंदे से लेना है. सो राम टू इंटरेस्ट. क्या टूटा? कौन गिरा? क्या गिरा? Ram to interest account. Okay, Ram to interest account. This is interest received or received.